Hello and welcome to lecture on split AC. So in this lecture we talk about the split AC, what are the component of split AC, how does it works. So if I talk about the split AC, it has the whole component of split AC can be divided into two categories. One is outdoor unit, second is indoor unit. As far as outdoor unit is concerned, it consists of compressor, condenser, and indoor unit consists of evaporator and expansion valve. If you have seen the split AC, then you may see that there is a unit which is at outside, that can be considered as outdoor unit. The unit which is installed inside the room or inside the space where cooling has to be done, that is the indoor unit. Okay, so let us see. This is the schematic diagram of split AC. So you can see over here, just a minute, you can see over here, this is the compressor. So it consists of the compressor, and what does compressor do? It takes in the refrigerant from the evaporator and it supplies that refrigerant to this condenser. You can see this is the condenser, and from condenser, basically what compressor do, it increases the pressure and temperature of the refrigerant or gas which is flowing inside the tubes. So later this is made to pass through the condenser, and what happens in the condenser, that refrigerant which is flowing inside the tubes will reject the heat to the atmosphere, and as soon as it rejects the heat to atmosphere, the gas or vapor form of the refrigerant gets converted into liquid form. Later this refrigerant is made to pass through the expansion valve. You can see over here it is expansion valve, and in expansion valve what will happens, it will reduce the pressure and temperature drastically. I mean, there will be very lesser temperature and pressure at the exit of expansion valve. Later this refrigerant is made to pass through the evaporator coil, and what happens in the evaporator coil, it will absorb the heat of the space. So since it is at low temperature and pressure, that's why this refrigerant will be converted into uh, गैस. ओके, तो आप थोड़ा हिंदी में इसको कन्वर्ट करके बताते हैं. सबसे पहले कंप्रेसर है, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट आएगा और रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आएगा तो कंप्रेस होगा. कंप्रेस होने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इसके बाद इसको हम कंडेंसर में पास कराते हैं. कंडेंसर में क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का कंडेंसेशन होगा. और कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो गैस होती है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है. तो कंडेंसर में क्या होगा, हीट का रिजेक्शन होगा एटमॉस्फेयर में, और जो गैस फ्लो हो रही होगी वो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी. उसके बाद इस लिक्विड को हम पास कराते हैं एक्सपेंशन बॉल. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन बॉल लगा हुआ है. एक्सपेंशन बॉल में क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. उसके बाद ये जो कम प्रेशर और कम टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है, इसको हम पास कराते हैं एवापोरेटर कॉइल में. एवापोरेटर कॉइल में क्या होता है कि ये कूलिंग स्पेस, जो भी जहाँ से भी हीट ऑब्जर्व करना है, तो वहाँ से ये हीट को ऑब्जर्व करेगा. हीट को जब ये ऑब्जर्व करेगा तो ये लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा. एवापोरेटर में बेसिकली एवापोरेशन होता है, और एवापोरेशन का मतलब ये होता है कि आपका लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है. उसके बाद फिर एवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट है वापस से कहाँ जाता है, कंप्रेसर में आ जाता है. तो ये इसका साइकिल होता है. साइकिल किस तरह से आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा. कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व से एवापोरेटर में जाएगा, और एवापोरेटर से फिर कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा. इस तरह से आपकी पूरी साइकिल रन करती है. इसके बाद हम देखते हैं कंप्रेसर. तो कंप्रेसर का मैं पहले आपको थोड़ा बता चुका हूँ. अब इसमें देखेंगे कंप्रेसर करता क्या है. तो कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट एंटर्स फ्रॉम एवापोरेटर एज अ वेपर फॉर्म. कंप्रेसर बेसिकली कपल्ड होता है किससे, मोटर से होता है. तो हार्मेटिक सील्ड जो कंप्रेसर से होते हैं वो एक ही केसिंग में आपका मोटर और कंप्रेसर दोनों को एक ही शाफ्ट पे कपल कर देते हैं. और ये बड़ा कोई सेटअप होता है तो उसमें कंप्रेसर और आपका मोटर है उसको हम कपल करते हैं ईदर थ्रू गियरिंग सिस्टम और बेल्ट सिस्टम से कपल करते हैं. तो कंप्रेसर में क्या होता है, आपका प्रेशर और टेम्परेचर और रेफ्रिजरेंट का इंक्रीज होता है. अलग अलग तरह के कंप्रेसर्स आते हैं, बहुत सारे तरह के कंप्रेसर होते हैं, जैसे हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होते हैं, रोटरी कंप्रेसर होता है, आपका स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं, स्क्रू कंप्रेसर होते हैं. तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम कंप्रेसर्स को यूज़ करते हैं. जहाँ जितनी कैपेसिटी का आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम कंप्रेसर्स को यूज़ करते हैं.
तो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट फिर कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप देख सकते हो कुछ कंप्रेसर के पिक्स हैं। ये आप ये इसमें देख रहे हो, ये बेसिकली हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है। इसमें क्या होता है, इधर ये मोटर वाला पार्ट है और ये ऊपर कंप्रेसर है, ठीक है। तो मोटर और कंप्रेसर को कपल कर रखा है, मोटर की शाफ्ट को आपने कंप्रेसर की शाफ्ट से जोड़ रखा है और ये पूरा एक ही केसिंग में बंद होता है। इसी तरह आप ये देख रहे हो, ये रोटरी कंप्रेसर है, ये भी हार्मेटिकली सील्ड है। इसमें क्या होगा, रोटरी कंप्रेसर आपका कपल होगा इलेक्ट्रिक मोटर से, जो कि एक ही केसिंग में है। और ये आपका रिसीवर है, एक्यूमुलेटर रिसीवर। अब इसके बाद हम देखते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर बेसिकली क्या होता है, एक हीट एक्सचेंजर होता है जो कि आपका हीट रिजेक्ट करता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। जनरली एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करते हैं। और कंडेंसर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अपना हीट किसको, वाटर को रिजेक्ट करते हैं। जो आपके डोमेस्टिक यूज़ में आते हैं, जो स्मॉल एप्लीकेशन में आते हैं, उनमें कंडेंसर हम वही यूज़ करते हैं जो एटमॉस्फेयर में हीट को रिजेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा स्प्लिट एसी में, ठीक है। अब कंडेंसर क्या होता है, बना किसका होता है, कंडेंसर में कॉपर या एल्यूमिनियम की ट्यूब्स होती हैं और उसके ऊपर हम फिन्स लगा देते हैं। फिन्स किस लिए लगाते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ जाएगा, इसलिए हम फिन्स लगाते हैं। और कंडेंसर की यदि हम बात करें तो इसमें रेफ्रिजरेंट वेपर की फॉर्म में एंटर होता है, हीट को रिजेक्ट करेगा और फिर वो जो वेपर आती है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट कहाँ पास होता है, एक्सपेंशन बॉल में, ये हम पहले देख चुके हैं। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ये वाला सेट, ये ये रिप्रेजेंट करता है आपका कंडेंसर, ठीक है। ये एवापोरेटर है। एवापोरेटर और कंडेंसर बेसिकली दोनों हीट एक्सचेंजर होते हैं, लेकिन काम दोनों में क्या होता है, रिवर्स होता है। कंडेंसर में क्या होता है, बेसिकली आपका जो गैस होता है, वेपर होता है, वो लिक्विड में चेंज होता है। और एवापोरेटर में क्या होता है, जो आपका लिक्विड है वो किस में चेंज होता है, वेपर में या गैस में चेंज होता है। ये आप देख रहे हो। ये एक्सपेंशन बॉल्व है। एक्सपेंशन बॉल्व में बेसिकली कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं, जो आपने डोमेस्टिक एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे फ्रिज है, विंडो एसी है, इनमें आप कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस होते हैं। इसके बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो लिक्विड होता है, वो एक्सपेंशन वॉल्व से फिर हम कहाँ पास कराते हैं, एवापोरेटर पर। आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैपिलरी ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सपेंशन वॉल्व है। एक्सपेंशन बॉल काफ़ी मतलब 3-4 टाइप के आते हैं और जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम एक्सपेंशन बॉल को यूज़ करते हैं। अब इसमें एवापोरेटर है। एवापोरेटर के बारे में हम थोड़ा पहले ही बता चुके हैं। एवापोरेटर बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर होता है जो कि सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व करता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये एवापोरेटर वाला पार्ट होता है, जनरली रूम के अंदर लगा होता है, ठीक है। तो रूम से ये हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और रूम में क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो एवापोरेटर क्या होता है, एवापोरेटर भी कॉपर एल्यूमिनियम की ट्यूब्स का बना होता है, जैसा कंडेंसर बना होता है, और इसमें एल्यूमिनियम की फिन्स लगी होती हैं। आप पूछ सकते हो कॉपर और एल्यूमिनियम का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और हीट ट्रांसफ़र कराने के लिए हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो यदि हम थर्मल कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम की ट्यूबिंग यूज़ करते हैं। तो एवापोरेटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट एंटर करता है और एवापोरेटर में हीट अब्जॉर्व होगा जिस स्पेस में एवापोरेटर लगा होगा। और चूंकि इसका टेम्परेचर और प्रेशर कम है तो क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर जो टेम्परेचर होगा रूम का, उसी टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा और बॉयल होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इस गैस को हम कंप्रेसर से दोबारा पास कराते हैं। तो इस तरह से अपना पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। कंप्रेसर से कंडेंसर में गया, कंडेंसर से एक्सपेंशन बॉल्व में गया, एक्सपेंशन बॉल्व से एवापोरेटर में और एवापोरेटर से दोबारा कंप्रेसर में। ये आप इसका कंप्लीट पिक्चर देख पा रहे हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए, ये बेसिकली इंडोर आउटडोर यूनिट लगी हुई हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये इंडोर यूनिट है यहाँ पे।
ये इंडोर यूनिट है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, इंडोर यूनिट में प्लास्टिक का बॉडी कवर होगा, उसके अंदर क्या होगा, एवापोरेटर लगा होगा, और एवापोरेटर के पीछे क्या लगा रहता है, ब्लोअर लगा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम इसकी बात करें तो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है, प्लास्टिक के स्ट्रक्चर के बाद इसमें फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर के बाद एवापोरेटर होता है, और एवापोरेटर के पीछे ब्लोअर लगा रहता है। तो ब्लोअर को रन करने के लिए मोटर लगी रहती है। तो जैसे ही ब्लोअर चलता है तो ये एटमॉस्फेयर से एयर को सक करता है। तो जब एयर को ये सक करेगा तो सबसे पहले एयर फिल्टर से पास होगी। तो फिल्टर में क्या होगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं एयर में, वो इम्प्योरिटीज़ उस फिल्टर में स्टक हो जाएंगे। इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इवन बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो भी वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। और उसके बाद उस एयर को हम पास कराते हैं किस पे, एवापोरेटर में, जो कि जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे ही ये एवापोरेटर से पास होगा तो क्या होगा, उस एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके बाद जब कूल्ड एयर होगी उसको दोबारा से कहाँ भेज देते हैं, रूम में भेज देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है ये पूरा इंडोर यूनिट है। और इंडोर यूनिट में इसमें दिखा रहा है ये रिटर्न एयर ग्रेट है, रिटर्न एयर रिटर्न ग्रेट। तो यहाँ से एयर आती है, ये यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, ये पूरे में इसमें फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर है। उसके बाद इसमें नीचे आपका लेफ़्ट राइट एयर फ्लो, ये फिन्स लगी हुई हैं नीचे, ठीक है। और ये एयर फ्लो के लिए अप डाउन एयर फ्लो डायरेक्शन एडजस्टिंग, ये फ्लैप लगे हुए हैं नीचे। यहाँ पे आप देखोगे ये फ्लैप है। फ्लैप से क्या होता है, एयर के मूवमेंट को आप पूरे रूम में कर सकते हैं। फ्लैप के मूवमेंट से क्या होता है, रूम में यूनिफॉर्म एयर का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे ये ड्रेन पाइप लगा हुआ है। ड्रेन पाइप बेसिकली क्या होता है, एयर है, एयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और एयर में वाटर के वेपर्स भी होते हैं। लेकिन वो वाटर के वेपर किसकी फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में होते हैं। तो गैस को जब हम ठंडा करेंगे, गैस का टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, या हम उसको बोलेंगे कंडेंसेशन में चेंज हो जाता है। जैसे इसके एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, फ्रिज से यदि आप बॉटल को निकालते हैं तो उस बॉटल के इमीडिएट विसिनिटी होती है, ऊपर होते हैं, तो क्या वाटर की ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये वाटर कहाँ से आता है, ये वाटर बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो एयर थी उसके सराउंडिंग में, उस एयर में जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो कंडेंस हो गए, वो गैस थी, वो गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में, तो वो एक्यूमुलेट हो गए। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लोअर है एयर को सक करेगा, सक करने के बाद वो एयर किस पे पास कराएंगे, एवापोरेटर पास कराएंगे। तो एवापोरेटर में जब वो पास कराते हैं तो उसमें एयर में जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और उस लिक्विड को हम फिर ड्रेन पाइप से बाहर भेज देते हैं। जनरली क्या होता है, बारिश वगैरह का मौसम होता है तो उस टाइम एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो कंडेंसेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हो ये इंडोर यूनिट है, और इधर यहाँ पे आप देख सकते हो ये आउटडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट में क्या होगा आपका, ये इधर आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है, इसमें कंडेंसर लगा होगा, और इसके में क्या होगा, कंप्रेसर लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इंडोर यूनिट है, तो इंडोर यूनिट का हमने बता दिया आपको। इसमें आप देख पा रहे हो ये पिक्टोरियल दिखाया गया है, इंडोर यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो जो बाहर है, बाहर ये भी इंडोर है, बाहर के ये ऊपर क्या लगा हुआ है, ये आउटडोर यूनिट लगा हुआ है। तो ये आपने देखा होगा। अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं सक्शन और डिस्चार्ज लाइन। सक्शन और डिस्चार्ज लाइन का क्या मतलब होता है, सक्शन लाइन है बेसिकली क्या होता है, ये एवापोरेटर को कंप्रेसर से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जब स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें दो लाइन होती हैं। यदि हम इंडोर से आउटडोर यूनिट की बात करें तो उसमें कॉपर की ट्यूबिंग की दो लाइन होती हैं। तो उसमें से एक लाइन क्या होगी, सक्शन लाइन होगी, और दूसरी कौन सी होगी, डिस्चार्ज लाइन होगी। हम पहचानेंगे कैसे कौन सी सक्शन है कौन सी डिस्चार्ज है, लेमैन की लैंग्वेज में। तो यदि जिसका साइज़ बड़ा होगा वो सक्शन लाइन होगी, और जिसका साइज़ छोटा होगा वो डिस्चार्ज लाइन होगी। क्योंकि सक्शन लाइन में क्या होगा, गैस फ्लो हो रहा होगा, और डिस्चार्ज लाइन में लिक्विड फ्लो हो रहा होगा। तो इसमें देखते हैं थोड़ा सा। सक्शन लाइन बेसिकली क्या होता है, एवापोरेटर को कंप्रेसर से कनेक्ट करता है, ठीक है। एवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में फ्लो होता है तो वो जिस लाइन के थ्रू फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं सक्शन लाइन, और कंप्रेसर से कंडेंसर में जिस लाइन के थ्रू रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। ये लो प्रेशर लाइन भी बोलते हैं सक्शन लाइन को, और डिस्चार्ज लाइन को हाई प्रेशर लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों आपका कंप्रेसर और कंडेंसर ये हाई प्रेशर पे एक्ट करते हैं, और आपका एवापोरेटर है ये लो प्रेशर पे एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और ये जो ट्यूब होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सक्शन लाइन का जो साइज़ होता है वो उसका डायमीटर होगा टिप का वो ज़्यादा होगा, और डिस्चार्ज लाइन है उसका डायमीटर कम होगा। इसका सीधा सा लॉजिक है, सक्शन लाइन बेसिकली क्या हैंडल कर रहा है, गैस हैंडल कर रहा है, और डिस्चार्ज लाइन बेसिकली क्या हैंडल कर रहा है, लिक्विड हैंडल कर रहा है। तो यदि मास फ्लो रेट सेम है तो ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इसलिए ये, तो यहाँ से आप देख के साइज देख के पहचान सकते हो कौन सी सक्शन लाइन है और कौन सी डिस्चार्ज लाइन। जिसका साइज बड़ा होगा वो आपका सक्शन लाइन होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो